Good morning to all of you. Today we will start a very important topic in open channel flow, okay? That is about to gradually varied flow. Let me introduce to myself. First of all, myself Indresh Kumar Singh, faculty of Civil Engineering Department, BBD NIIT Lucknow. Okay. So, we start gradually varied flow. As you can see, topic is today's lecture is introduction of gradually varied flow. So, in this lecture we have discussed about only the introduction of gradually varied flow. Okay. So, it is a second unit of your syllabus. In first unit we have discussed about the uniform flow. We have also completed Chazy's equation, Manning equations, specific energy concept, and after that now we reach at the unit second, and in this unit we will discuss about changes of depths whenever the fluid flow, okay. And some practical examples we will also discuss in this class. So, we let us start. Hydraulic engineering and machine, it is your subject code is KCE 403, mod 2, lecture number 1. Okay, so introduction, तो इसमें जो introduction आपका है gradually varied flow का, we recapitulate did the first units first of all, then we start the gradually varied flow. Okay. In first unit of open channel flow, we have discussed about the difference between open channel flow and gradually varied flow. Okay. Sorry, open channel flow pipe flow में, and after that we have discussed some geometric parameters. After that we have discussed most economically channel sections. We have also completed the most economically channel sections with some very important relations formula which we use in uniform flow, like Chazy equation, Manning's equation, okay. And also we have completed the specific energy concept with the specific energy curve. Okay. So, let us we start the gradually varied flow. In this section we consider gradually varied flow, it is also known in short is GVF, gradually varied flow. Okay. So, gradually varied flow, in short we can write down the GVF, okay, gradually varied flow, which is a form of steady flow characterized by gradually variation in flow depth and velocity, and a free surface that always remains smooth, okay, no discontinuity or zigzag on the surface. In this section the equation for gradually varied open channel flow will be discussed, and different possible profiles of water surface will be presented. The direct step method is introduced to determine the water surface profile, we will discuss later. Okay. So, first of all we want to know what is mean by the gradually varied flow. If we in simple language we can discuss gradually varied flow. We define the gradually varied flow as it is a non-uniform steady flow, okay. Non-uniform steady flow in open channel flow, that flow is known as gradually varied flow. For non-uniform open channel flow, the cross sectional area, depth and velocity vary along the channel. The flow is classified as gradually varied flow when the change of fluid depth along the channel dy dx is much less than 1. For gradually varied flow, the channel can be divided into different sections called the reaches, and the uniform flow equations such as the Chazy and Manning equation are applicable for calculating the head loss in such reaches. Okay. देखिए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम में दिखाना चाहूँगा कि मान लीजिए इस तरीके से कि ये हमारा चैनल सेक्शन है, ये बॉटम है अब किसी चैनल सेक्शन का, ओके। अब इसका स्लोप जो होगा वो S नॉट से डिनोट करते थे, यूनिफॉर्म फ्लो में भी हमने देखा था।
तो वो आपका क्या होगा, एक यहाँ पर जो होगा एक बहुत ही कम स्लोप लोगे, और अगर ये फ्लो हो रहा है एंड डेप्थ इस सेक्शन पे अगर 1 पे मैं कहूँ D1 है, और इस सेक्शन पर ये जो डेप्थ होगी वो D2 है, ओके, और इन दोनों के बीच में ये लेंथ जो है वो L लेंथ है। अब आपको देखना है कि ये जो डेप्थ D1 और D2 में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब ये अगर चाहे y से डिनोट करो, ये जो है बहुत कम, मान लीजिए D1 हमारी वो लेस देन है D2 से, ओके, और कब, जब हमारी L हमारी काफ़ी लार्ज लेंथ हो गई, लार्ज लेंथ मीन्स अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो काफ़ी लेंथ तक जो डेप्थ में वेरी करेगा वो बहुत ग्रेजुअली वेरिड होना चाहिए, ओके। कोई भी फ्लो हो, आपने देखा कि जब भी डेप्थ हमारी चेंज नहीं हो रही थी, यूनिफॉर्म फ्लो था, लेकिन जब ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में आए हैं तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में आपको ये ध्यान रखना है कि एक रैपिड वेरिड फ्लो होता है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। रैपिड वेरिड फ्लो में क्या होता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस डेप्थ वेरी करती है, ओके, तुरंत डेप्थ वेरी करती है। बट ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में क्या होता है, आप लॉन्ग डिस्टेंस तक जाओगे और फिर देखोगे कि डेप्थ वेरी कर रही है, मतलब बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे वेरी करती है। जैसे कि कोई ओपन चैनल अगर बना है तो ओपन चैनल में यहाँ पे देखा कि एक सेक्शन है हमारा, वहाँ पे हमने अगर डेप्थ ऑफ फ्लो, जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उसकी डेप्थ D1 अगर है, और फिर हम गए सेक्शन कहीं पे हमने 2 कट किया, वहाँ पे D2 पे गया, अब देखिए यहाँ पे बहुत कम वेरी कर रही है, ओके। तो डेप्थ जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन काफ़ी जब डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, उस डायरेक्शन में आपकी काफ़ी डिस्टेंस कवर करने पर डेप्थ वेरी करती है, तो वो ग्रेजुअली चेंजेस आता है। मतलब हम उसको ये भी कह सकते हैं, अगर उसको हम सेक्शंस में कट कर दें कई पार्ट्स में, मान लीजिए इस तरीके से हम छोटे छोटे पार्ट्स कट कर दें, तो इन छोटे से पार्ट्स के लिए क्या होगा, वो एक यूनिफॉर्म फ्लो की तरह ही बिहेव कर रहा होगा, ओके। लेकिन जब इस लार्ज डिस्टेंस पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारी डेप्थ जो है किसी भी चैनल फ्लो की वो वेरी कर रही है, ओके। तो वो जब वेरी करती है डेप्थ, इसका मतलब वाई वेरी कर रहा है किसके अलॉन्ग, एक्स के अलॉन्ग। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ तो आपको दिखेगा इस तरीके से कि अगर हमारी ये डेप्थ वाई है और ये वेरी कर रही है एक्स के डायरेक्शन में, ओके। तो अगर आपको पता चल गया कि डेप्थ जो हमारी वाई कर रही है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, तो उस टर्म को हम लोग ये भी लिख सकते हैं dy/dx, ओके। तो dy/dx भी लिख सकते हैं, और ये क्या है, एक स्लोप ही है, तो स्लोप ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर dy/dx मैंने लिखा कि y हमारा वेरी कर रहा है एक्स के डायरेक्शन में, लेकिन काफ़ी लार्ज डिस्टेंस तक गए किसी भी चैनल फ्लो में, तब वहाँ पे ये चीज़ वेरी करती है। अब हमने ये भी देखा कि अगर मैं सेक्शन कट कर दूँ तो उन सेक्शंस पे, छोटे छोटे सेक्शन को अगर कंसीडर करें तो वो हमारा कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म फ्लो की तरह ही बिहेव करेगा पूरा फ्लूइड, ओके। यही लिखा था। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अब देखो यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया गया है और इसमें यही बताना गया है कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कैसे हो रहा है। मान लीजिए आपकी ये आपकी डेटम लाइन है, ओके, और इस डेटम लाइन का जो स्लोप होगा वो उन्होंने S0 मान लिया है, जो कि हम लोग मानते हैं कोई ना कोई स्लोप होगा। ये हमारी एनर्जी लाइन दी गई है, एनर्जी लाइन का स्लोप आपका SF से डिनोट किया गया है, ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में है। तो ये आपका एनर्जी लाइन जो है, हमारे एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, उसका स्लोप जो है SF दिया गया है, और जो बॉटम का स्लोप है S0 दिया गया है। जबकि यूनिफॉर्म फ्लो में क्या कर रहे थे, हम दोनों का स्लोप, जब चेरी या मैनी इक्वेशन यूज करते हैं तो वहाँ पे दोनों का स्लोप सेम मान लेते हैं, तो हम चेजी की इक्वेशन या मैनिंग्स की इक्वेशन में S0 यूज कर देते थे, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी लाइन का स्लोप और बॉटम का दोनों सेम था। बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो जब हम इक्वेशंस यूज करेंगे तो वहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि थोड़ी चीज़ें कौन सा स्लोप यूज करना है। पहले हम ये देखते हैं कि ये डिस्टेंस अलॉन्ग गए हैं, तो अगर यहाँ से लेकर आपने सेक्शन 1 1 2 2 3 3 तक गए, तो ये देखिए y1 y2 y3। अब इस डायग्राम से भी आपको देखकर समझ में ये बात आ रही होगी कि यहाँ y1 ज़्यादा है, y3 हमारी डेप्थ कम है। तो इसके कई रीजन्स हो सकते हैं कि या तो वेलोसिटी ज़्यादा हो, वेरी कर रही हो, क्रॉस सेक्शन बढ़ गया हो, वो वेरी कर रहा हो, कोई भी रीजन हो सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान देना है, हमको ये समझना है कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में आपको ये देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर डेप्थ वेरी कर रही है, ओके। तो ये डेप्थ किस तरीके से वेरी कर रही है उसको हमें समझना है।
तो आप देखिए यहाँ पर ये y1 है, डेप्थ हमने किसी सेक्शन पे लिए y2 और कहाँ तक गए, डेल x डिस्टेंस तक, और इस डिस्टेंस पर जाके हमने देखा कि हमारी डेप्थ जो है वो वेरी कर रही है। तो जब कभी भी इन द x डायरेक्शन जब आपकी डेप्थ वेरी करती है, ओके, तो उसको हम लोग ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोलते हैं। उसकी इक्वेशंस हम ड्राइव करेंगे अभी आगे। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है, इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो तो है नहीं, यहाँ पे डेप्थ वेरी कर रही है। इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बट स्टेडी फ्लो, ओके, नॉन यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो वेयर द डेप्थ इज वेरी और चेंज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली जब डेप्थ हमारी वेरी करती है, देख लीजिए ये फ्लो हो रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेप्थ किस तरीके से हमारी चेंज हो रही है। और जब कभी भी कहीं भी कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वहाँ पर अगर आपकी डेप्थ चेंज हो रही है इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ओके। ठीक, देखिए ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इक्वेशन क्या होती है, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ओके। क्या है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इक्वेशन से पहले जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है हमारा, द फ्लो इज अ स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। देखो, ठीक, फर्स्ट पॉइंट आपको ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में याद रखना है, बिल्कुल रट लेना है इस चीज़ को कि द फ्लो इज अ स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की जो डिफिनीशन भी बताई है कि फ्लो जो है स्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है, ओके। एंड सेकेंड थिंग इज कांस्टेंट हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स विद टाइम इंटरवल। एंड जो हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देखिए फर्स्ट यूनिट में जब आप यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ रहे थे तो हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उसके, तो वो सारे कांस्टेंट हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स विद टाइम इंटरवल, ओके। एक टाइम इंटरवल पर वो हमारे जो हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, इसीलिए इसको स्टेडी फ्लो बोलते हैं। द डेप्थ वेरीज अलॉन्ग द लेंथ ऑफ चैनल। और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे ध्यान देना है पूरा, और पूरी इस यूनिट में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, तो वो है कि हमारी डेप्थ जो है वो वेरी करती है किधर, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द चैनल। जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या है हमारी डेप्थ वेरी करती रहेगी फ्लूइड की। अब वो कई पैरामीटर्स हो सकते हैं कि डेप्थ क्यों वेरी कर रही है, वो क्वेश्चन आ सकता है, ओके। तो वो हम धीरे धीरे इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। और भी चीज़ इसमें हम इसकी प्रॉपर्टी में समझ सकते हैं कि स्ट्रीम लाइन्स आर पैरेलल्स। ये जो चीज़ है स्ट्रीम लाइन्स आर पैरेलल्स, हम लोगों ने यूनिफॉर्म फ्लो में तो ये जानते हैं कि स्ट्रीम लाइन्स आर पैरेलल्स होती हैं। यहाँ पर हमारा ये क्या रहेगा, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में इसको हम एज्यूम करेंगे, ओके। कुछ एज्यूमशंस रहेंगे कि स्ट्रीम लाइन्स पैरेलल क्यों होती है और क्यों चाहिए, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर एज्यूमशन भी करेंगे, क्योंकि जब कुछ चीज़ एज्यूम करेंगे तभी फिर हमको पता चलेगा, वरना मैथमेटिकल जब कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू एरर आ सकती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब इक्वेशंस ड्राइव करेंगे तो उसमें कुछ एज्यूमशंस चाहिए होते हैं। हर यूनिट में हम लोग फ्लूइड में देखते हैं कि एज्यूमशंस चाहिए, क्योंकि जब ड्राबैक आएंगे तो वो उन्हीं के बेसिस पर हम निकालेंगे कि क्या ड्राबैक थे, ओके। तो वो एज्यूमशंस ड्राबैक की तरह हम उसको कैलकुलेट करेंगे बाद में, तो फिर एनालिसिस करेंगे। तो स्ट्रीम लाइन्स यहाँ पर पैरेलल होती हैं, एज्यूम करेंगे। अभी हम एज्यूमशंस में इसको डिस्कस करेंगे। और अगली आपकी प्रॉपर्टी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन प्रिवेल्स ओवर द चैनल सेक्शन, द वेलोसिटी वेरीज अलॉन्ग द चैनल्स। अब देखिए यहाँ पर अगर डेप्थ वेरी कर रही होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, क्रॉस सेक्शन की बात की, ओके, वो वेरी कर रहे होंगे तो वेलोसिटी भी वेरी कर रही होगी। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में ये भी ध्यान रखना है आपको, द वेलोसिटी वेरीज अलॉन्ग द चैनल्स। नेक्स्ट है आपका द वेट स्लोप एंड वाटर सरफेस स्लोप, एनर्जी लाइन स्लोप विल बी डिफर ईच अदर। ये ध्यान रखो कि जो यूनिफॉर्म फ्लो में बेड स्लोप को और एनर्जी लाइन स्लोप को हम लोग सेम मान लेते थे, इक्वल, ओके। यहाँ पर क्या है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेट स्लोप होता है, वाटर सरफेस स्लोप होता है, जो पीछे डायग्राम में अगर डिस्कस किए थे, यहाँ पर देखिए कि जो ये वाला बेड स्लोप होगा, ये इसका वाटर स्लोप होगा, इस वाटर सरफेस का स्लोप, और ये एनर्जी ग्रेडियंट लाइन्स होगा। तो ये तीनों क्या होते हैं, वेरी करते हैं, ओके। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में ये तीनों डिफर करते हैं आपस में। तो यहाँ पर वही लिखा है, द वेट स्लोप, वाटर सरफेस स्लोप एंड एनर्जी स्लोप विल डिफर ईच अदर। तीनों एक दूसरे से डिफर करते हैं। एज्यूमशन में इसके बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा। तो यही चेंजेस आएगा यूनिफॉर्म फ्लो से, और इसमें ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में क्या चेंजेस रहेगा इसके बारे में देखेंगे भी। अगला है द
फ्रिक्शन लॉसेस ओवर द वेड हैज सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लॉसेस होंगे तो वो सिग्निफिकेंस होंगे, उनके बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में क्या है? द बैक वाटर प्रोड्यूस बाई अ डैम और वियर अक्रॉस अ रिवर। ये क्या हो गया कि कोई भी डैम है, जाइए मान लीजिए यहाँ पर कोई भी डैम आपने क्रिएट किया है, ओके, ये डैम आपका बना है इस तरीके से, मान लीजिए बना दीजिए, ठीक, ये डैम आपका बन गया। अब देखिए यहाँ अगर वाटर आ रहा होगा तो जब यहाँ टकराएगा इस हाइट तक आता होगा, यहाँ पहले फिल होना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे इसकी ये वेरी करती जाएगी डेप्थ, ओके, पीछे से जहाँ से आ रहा होगा ऐसे वेरी करती गई और ये बढ़ती जाएगी। तो ये भी एग्जाम्पल हमारा हो गया कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का डैम पर वियर्स पे क्रॉस, और रिवर्स पे भी कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट करो तो उसमें क्या होता है हमारा, किस तरीके से पीछे बैक वाटर जो होता है वहाँ पर हाइट जो डेप्थ होती है वो वेरी करती है, और वो ग्रेजुअली वेरी करती रहती है, जैसे जैसे वाटर आता रहता है उसी तरीके से वो वेरी करती है। ड्रा डाउन प्रोड्यूस अ सडन ड्रॉप इन अ चैनल। अब यहाँ पर देखिए अगर ड्रॉ डाउन कहीं पे हो रहा है तो वहाँ पर भी सडन ड्रॉप हो जाता है आपका। तो सडन ड्रॉप किसी भी चैनल में अगर हो जाएगा ड्रॉ डाउन डायरेक्शन में, ड्रॉ डाउन पे, तो वहाँ पर क्या होगा, डेप्थ चेंज हो जाएगी, और डेप्थ अगर चेंज हो रही है तो धीरे धीरे वहाँ भी वाटर क्या होता है, चेंज करता है, क्योंकि वहाँ जब भी आप देखिए तो वहाँ पे हाइड्रोलिक जंप अगर हुई तो रैपिड वेरिड फ्लो होता है वहाँ से, लेकिन जब वाटर अपने यूनिफॉर्म की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे वो डेप्थ वेरी करेगी, तो कहीं ना कहीं उस दोनों के बीच में आपका ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होता है। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी डिस्कस करते रहेंगे। इसके बाद में हम लोग इसमें ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में उसके एज्यूम्शंस को डिस्कस करेंगे। ओके, इन एज्यूम्शंस को देखेंगे, उन एज्यूम्शंस के बारे में जानेंगे। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो जो है, इट इज़ अ स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इन विच द डेप्थ ऑफ अ फ्लूइड फ्लो इज़ वेरी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ओके, उस डायरेक्शन में जो हमारी डेप्थ वेरी करती है या वो चेंज होती है, ओके, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक, तो उसको हम ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोलते हैं। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में हमको उसकी एक ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो वो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के लिए जो इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कही जाती है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में। ओके, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को डिनोट करते हैं डी वाई डी एक्स से। अब जैसे ही वो डिफरेंशियल इक्वेशन आए, डी वाई डी एक्स का टर्म बोला तो आप तुरंत समझ गए होंगे, हम अभी डिस्कस किए कि डी वाई डी एक्स का मतलब हुआ कि वाई हमारे जो है वो चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। मीन्स जो डेप्थ हम कंसीडर करेंगे किसी भी चैनल में फ्लूइड फ्लो की, वो हमारे किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, एक्स के, मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में डेप्थ वेरी कर रही है। अब हमको ये देखना है कि जो डी वाई डी एक्स है, ये इक्वेशन ड्राइव करनी है हमको, डी वाई डी एक्स। तो ये इक्वेशन जो ड्राइव करनी है, इस इक्वेशन के इक्वल में कौन से पैरामीटर्स लिखे होंगे, ओके, वो पैरामीटर्स लिखे होंगे वो आपके फ्लूइड के ही होंगे जो आपने यूनिफॉर्म फ्लो में कुछ पढ़े होंगे, कुछ यहाँ पर हम देखेंगे एज्यूम्शंस के बाद। तो ये देखेंगे कि ये जो जो चेंज किस पे डिपेंड करता है, डी वाई डी एक्स। तो ये इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमको कुछ एज्यूम्शंस एज्यूम करने पड़ेंगे, यहाँ पे कुछ एज्यूम्शंस लेंगे हम, क्योंकि वो पैरामीटर जब एज्यूम करेंगे तो उसी के बेसिस पे हम लोग इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो बाद में जब ड्राबैक हम उसके डिस्कस करते हैं किसी भी इक्वेशन के, तो फिर हम वो एज्यूम्शंस जब होते हैं तो वही हमारे ड्राबैक में आएंगे बाद में। ओके, क्योंकि अगर सबको सेटिस्फाई, सारी वैल्यूज़ सेटिस्फाई रहती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ एज्यूम्शंस हैं, कई बुक्स में कई एज्यूम्शंस अलग अलग आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए दो एज्यूम्शंस जो बेसिक मेन एज्यूम्शंस हैं वो यहाँ पे क्लासीफाई किए हैं। ओके, देखते हैं। द टू बेसिक एज्यूम्शन इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। कौन से हैं बेसिक एज्यूम्शंस जो दो हमने इन्वॉल्व किए हैं? वो आपके हैं, द फर्स्ट, पहला जो है, द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी सेक्शन इज एज्यूम्ड टू बी हाइड्रोस्टैटिक। ओके, जो भी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक एज्यूम करके लेते हैं। जबकि हमारा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में डेप्थ चेंज हो रही है, तो अगर प्रेशर की बात करें तो रो जी वाई या एच जो लिखते हो तो रो जी वाई, अगर वाई चेंज हो रही है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किसी सेक्शन पे अगर बात करें तो वहाँ पर हम इसको हाइड्रोस्टैटिक ही एज्यूम करते हैं। द फॉलोज फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ फ्लो टू हैव अ ग्रेजुअल वेरिड फ्लो वाटर सरफेस as gradually change in the surface
curvature give rise the negligible normal acceleration. The departure from the hydrostatic pressure distribution is negligible. तो देखो इस एज्यूम्शन में ये कह रहे हैं ऐसा नहीं कि प्रेशर वेरी नहीं कर रहा होगा, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है तो कुछ ना कुछ प्रेशर वहाँ पे वेरी जरूर कर रहा होगा. ओके तो कुछ ना कुछ प्रेशर जब वेरी कर रहा होगा तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में, लेकिन उससे क्या होगा वो कहीं ना कहीं हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाइड्रोस्टैटिक है. ओके तो होते हैं तो वो बहुत नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं, तो इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और फिर हो सकता है कि हमारी जो एक्सपेरिमेंट है या जो हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करें, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मिसमैच हो सकता है और उतनी अच्छी स्टडी ना हो सके. तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको एज्यूम कर लेते हैं कि जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी सेक्शन पे हमारा हाइड्रोस्टैटिक एज्यूम कर लेते हैं. ओके तो पहला तो ये हो गया कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोस्टैटिक एज्यूम कर लेते हैं. और इसके बारे में जैसे कि आपको पता है कि प्रेशर जो आप लिखते थे रो जी वाई कॉस थीटा अगर लिखते हो, ओके तो कॉस थीटा यहाँ पर जो है आपको पता है कि हम ये वेड स्लोप थीटा होता था, थीटा को मानते थे. ओके एस नॉट, तो वो कहीं ना कहीं बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है. ओके तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो हमारा फिर रो जी वाई अब किसी भी सेक्शन पे होगा, थीटा पे डिपेंड नहीं करा, तो रो जी वाई भी हम प्रेशर लिख सकते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर फोर्स आ जाएगा. ओके तो यहाँ से आप समझ रहे हो कि जो रो जी वाई कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा हमें मालूम है कि स्लोप का ही वो टर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे थीटा इक्वल लिख सकते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो रहा. तो बॉटम स्लोप ऑफ द चैनल फ्लो है वो बहुत ही स्मॉल होता है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होता है, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं. ओके सेकेंड वन है द रेजिस्टेंस टू फ्लो एट एनी डेप्थ इज एज्यूम टू गिवन बाय द करस्पॉन्डिंग यूनिफॉर्म फ्लो इक्वेशन. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो चेजी और मैनिंग इक्वेशन हम वहाँ पे यूज कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर आपने क्या कंसीडर किया था कि जो बॉटम स्लोप है और एनर्जी लाइन स्लोप है वो दोनों सेम होते हैं, तो हम वहाँ पे बॉटम चैनल स्लोप यूज कर दे रहे थे. ओके उसमें चेजी और मैनिंग्स की इक्वेशंस में. लेकिन जब ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में आएंगे तो यहाँ पर एनर्जी और चैनल बॉटम स्लोप है दोनों अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ओके तो यहाँ पर हम एनर्जी लाइन स्लोप जो होगा वो यूज करेंगे, ना कि बॉटम वाला स्लोप यूज करेंगे, क्योंकि वो बहुत कम होता है. यहाँ पर ग्रेजुअली वेरिड कर रहा था तो उसकी जगह पर हम एनर्जी लाइन स्लोप जो होगा वो यूज करेंगे. ओके विद द कंडीशन दैट स्लोप टर्म टू बी यूज इन द इक्वेशन इज द एनर्जी लाइन स्लोप. ओके देखो यहाँ पे लिखा है, तो एनर्जी लाइन स्लोप क्यों यूज करेंगे, हमने आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म फ्लो में जब थे तो चेजी या मैनिंग की जो इक्वेशंस थी तो उसमें क्या था कि बॉटम स्लोप और एनर्जी लाइन स्लोप दोनों सेम होते हैं, याद रखिएगा. तो वो दोनों सेम होते, तो इसलिए हमने बॉटम का उसका चैनल का स्लोप यूज कर दिया था. यहाँ पे हमारा बॉटम चैनल स्लोप जो जिस डिस्टेंस तक हमारी डेप्थ वेरी करेगी तो वहाँ पे बहुत कम स्लोप भी होगा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में, तो इसलिए हम क्या करते हैं एनर्जी लाइन स्लोप यूज करते हैं. ओके किसमें मैनिंग्स इक्वेशन या चेजी इक्वेशंस में जब आप यूज करोगे तो वहाँ पे यूज करेंगे. एस ई यहाँ पे एस ई से डिनोट किया गया है, किसी किसी बुक में एस एफ से भी डिनोट कर देते हैं. एंड नॉट द वेड स्लोप एस नॉट ये नहीं का. दस if the gradually varied flow depth of flow at any section is y, the energy line slope s is given by this. ओके अब ये कहाँ से आया, ओके ये वाला देखो आपको मैंने इक्वेशन पता होगी, वेलोसिटी v इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3, r इज द हाइड्रोलिक रेडियस और s नॉट लिखते थे 1/2. ओके लेकिन जब ये किस में था, यूनिफॉर्म फ्लो में. यूनिफॉर्म फ्लो में मैंने बताया कि एस नॉट आप यूज कर सकते हो वहाँ पे बॉटम स्लोप. लेकिन जब इसमें आ जाओगे तो आपका ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में 1/n r की पावर 2/3 और s e से डिनोट किए हैं, इससे हम रिप्लेस कर देते हैं स्लोप को. ओके तो इसको रिप्लेस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एस ई यहाँ से अगर निकालोगे बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो एस ई इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर एन स्क्वायर और r की पावर 4/3. ओके तो ये वाला रिलेशन यही मैनिंग से आ जाएगा, तो यही वाला स्लोप यूज किया जाता है और इससे हम कैलकुलेट करते हैं. वेयर आर इज द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ द चैनल सेक्शन, कहाँ ये वाला वी वेलोसिटी, एन क्या है हमारा मैनिंग्स कांस्टेंट जो मैनिंग्स कोफिशिएंट है.
ओके तो ये दो एज्यूम्शंस हैं और उसमें जो आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वाला एज्यूम्शन था तो उसके बारे में ये भी जैसे चीज़ है। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ पहला कि जैसे यूनिफॉर्म फ्लो अगर कहीं पर था तो वहाँ पर जो स्ट्रीम लाइंस थी इस तरीके से बिल्कुल पैरेलल थी। ओके ग्रेजुअली वैरिड फ्लो जब कहीं पर होता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उनमें स्ट्रीम लाइंस में इस तरीके से कर्वेचर आ जाता, पैरेलल तो रहती हैं, कर्वेचर रहता है, लेकिन इस कर्वेचर को हम नेग्लिजिबल करते हैं, लाइक अ यूनिफॉर्म फ्लो कंसीडर कर लेते हैं। इसीलिए जो प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टेटिक ही कंसीडर करते हैं। ओके ठीक, देयर आर द टू बेसिक एज्यूम्शन ऑफ जी विच इंक्लूड द फॉलोइंग 6 मेजर इश्यूज। जो दो हम लोगों ने एज्यूम्शंस लिए हैं, एक हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट एनी सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो हाइड्रोस्टैटिक कंसीडर किया, दूसरा हमने स्लोप जो है एनर्जी लाइन स्लोप यूज कर दिया है एट द बॉटम की जगह पर। ओके और क्यों, क्योंकि बॉटम बहुत यहाँ पे कम होगा तो उसकी जगह पे, और दोनों डिफरेंट होते हैं यहाँ पर। ओके इक्वल नहीं होगा तो इसलिए हमने यूज किया। तो इसमें मेजर इश्यूज क्या हैं? ओके जो बेसिक एज्यूम्शंस हैं उसके मेजर इश्यूज क्या हैं तो देखते हैं। स्लोली चेंजिंग ऑफ बॉटम स्लोप, बहुत कम बॉटम स्लोप चेंज होता है। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि बॉटम स्लोप नहीं होता है, बॉटम स्लोप चेंज कितना हो रहा होगा और जिस लेंथ को हम लोग कंसीडर करेंगे उस लेंथ में, उस क्रॉस सेक्शन में 1 से 2 के बीच में स्लोप बहुत कम बॉटम रहता है, बहुत कम चेंज होता है, स्लोली चेंज होता है ग्रेजुअली वैरिड फ्लो में। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि वो हम उसकी जगह एनर्जी लाइन स्लोप यूज करते हैं और चेजी-ओमेनी की इक्वेशन में उसको रिप्लेस कर देते हैं। स्लोली चेंज ऑफ वाटर डेप्थ, नो हाइड्रोलिक जंप। ओके स्लोली चेंज होता है तो वाटर डेप्थ और उसमें हाइड्रोलिक जंप नहीं तो बहुत स्लोली चेंज होता है। स्लोली चेंज इन क्रॉस सेक्शन, ऐसा नहीं अचानक क्रॉस सेक्शन उसका एक्सपेंड कर दिया जाए या कॉन्ट्रैक्शन कर दिया जाए, वो भी बहुत स्लो चेंज होते हैं। ओके वन डायमेंशनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली हाइड्रोस्टैटिक रहता है, अप्रॉक्सीमेटली में ये भी एक इशू है, हमने एज्यूम किया है। द फ्लो रेजिस्टेंस पॉसिबल कंप्यूट विद यूनिफॉर्म फ्लो इक्वेशन, जो यूनिफॉर्म फ्लो इक्वेशंस थी उन्हीं से हम यहाँ पर फाइंड आउट कैलकुलेट कर सकते हैं। इंस्टेंट मैनिंग्स फॉर इंटेंस मैनिंग्स विद द कंसिडरेशन विद द एनर्जी स्लोप नॉट बेड स्लोप। तो ये कुछ इसमें जो आपके मेजर इश्यूज हैं इनके बारे में आप समझ लीजिए और जान लीजिए। ओके और इसके बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका डेरिवेशन किसका, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर में उसको ड्राइव करेंगे। ओके तो ये इस लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया है कि एज्यूम्शंस क्या है, उस एज्यूम्शंस के क्या रीजन्स हैं, इशूज़ हैं, वो इशूज़ देख लिए और ग्रेजुअली वैरिड फ्लो क्या होता है। ओके सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द what is gradually varied flow and basic assumptions and some regions. Okay, in next lecture we have start gradually varied flow differential equation, उसका derivation. Okay, thank you class.